Hello guys, welcome back to my channel. I hope you have seen my earlier two videos, part 1 and part 2 on CA finals and IPCC finals, how we can clear the finals in short period of time. I have shared my learnings and what are the mistakes that normally a student does, which definitely doesn't help him in clearing the CA exams quickly. So if you have not watched those videos, please watch them first, and those videos are in Hindi. If the audience demand, we can also make them in English as well. So for somebody who is in South, I think they will not understand Hindi, so we'll also make the content in English if we get good demand on that. This video is part 3. Okay, this is a part 3 of the continuation series of the part 3. How can you be more effectively study for CA finals or IPCC, whatever. So this video will definitely be helpful for you to clear your exams. Okay. So in the first two parts, we have discussed about RTP and how to divide the number of subjects, unitary method, Pareto analysis, and how you should divide the subjects and everything. Yeah, we're not going to discuss the same thing. Now this video, this is a part 3, the ultimatum series. Now in this video, I want to tell you that what actually has the reason why I was not able to clear in the first attempt. Okay, and the reason was only one subject, ISKA, where I scored around 36 marks. Okay, so I scored around 36 marks in ISKA, and this is the first time I actually failed in any exam till now. So I saw the paper. I asked I called for the paper, and when I saw the paper, the reason why I got 36 was that the first two questions which I attempted, there I made a big blunder by selecting the wrong question, and because of which I did the wrong answer. I interpreted the question wrong, and I got 0 out of the whatever the marks it was. I think 6 out of 6. I got only 0. I got 0 out of 6 marks. So that actually brought a bad impression in the examiner, and he gave me afterwards like a number marks that he tried. He gave me like out of 6 I got 1, 2, like this I got. Even in the right answers also I wrote everything correct. Then also they gave me less marks. Now you can't complain to institute, because this is the trend what they follow. If your first two questions are wrong, this is what I have seen. Even I have seen my seniors and many students. If your first 2 or 3 questions are wrong, then there is a high probability they will scale down your marks, and your marks will be very low. So make sure this mistake that you don't repeat, that I made this mistake, that you don't repeat this mistake. Okay, how can you ensure that you don't make this mistake? The hack that I use is before the exam, after completing that question also, I used to check that whether I've done it properly or not. It will take 1 or 2 minutes, but I will check the calculation and everything, whether I've done it properly or not. First 2 or 3 questions is very, very important. Later on you can skip it, but first 2 questions are important. Also at the end also, I will keep a 10 to 15 minutes time and try to check the paper, whether I've done it properly or not. Normally what happens, you will not get time at the end of the video. You will not get that much of time to, like for example, you will not get that much time to check the your paper. So it is very important that at the initial stage only you check. It will take 1 or 2 minutes also. तो आप अपना पेपर को पहले ही चेक कर लो. You check your paper at that time only. It will help you to save a lot of marks, and a good impression is created in the eyes of the whoever is checking your paper. And please remember, examiner is the god. If you're not able to satisfy your examiner, then you will not be able to clear your CA finals or IPCC, whatever exams you're giving. So this is very, very important, that try to make sure that your examiner is happy with your efforts. The second thing which is very important, which I have always improved as a hack I use, is in the theory I take diagrams and all. I make it. So I used to create diagrams in the ISKA paper or audit or law. So that helps me in getting some extra marks. Like I can use a triangle shape or a pyramid shape or a circle, whatever diagrams are there in the. Basically in ISKA I used a lot of diagrams. The diagrams helps to more. It gives a different type of picture. So it looks a different paper than the others. And diagrams I will give the major pointers, and then I will explain the pointers. So this is another way you can improve your marks in theory. Otherwise, in theory you will not get that much of marks, but if you use some diagrams there, then your marks can be increased.
If you like this point, do mention this in the comment also that I like this point, so this will give us a lot of booster also, because this sort of content I don't think anybody provides that in YouTube or anywhere. So diagrams in theory that can help you a lot. You can use pen also, paper or pen or pencil, I don't know if you can use or not, but you can check it out. But diagrams definitely will increase your marks in theory, and in theory you can use diagrams. Check your paper well, but first two questions have to be correct. Okay. And apart from this RTP and all, I have already discussed in the first 2 or 3 videos, and how you should utilize your 15 minutes time. So you should go through this. Now the main important thing is your 1.5 that you get, the 1.5 days that you get for preparation. That is the most important time that you are getting. I would suggest that that is the important time, that you should not waste that time, because whatever you have studied in the past, that is the past. Ultimately, if the 1.5 days, if you get, if you're not well healthy, or you have a fever you get it, or any disease you get it, then your game is over. So make sure that you are super active and super healthy in those 15 days. In those 15 days of your examination, you prepare well. So how I prepared it, that I did it like after 5:30. Normally I get a 6 to 6.5 hours time. Normally, so what I did is that the moment I went to home, I will not discuss the paper with anyone. I will definitely go very fast to home also. This is also very important. You should not walk away. You should take a cab or something and go run away to your home. And this is very important. Run away to your home very quickly, and start studying. Even in a cab, you start studying. So what I used to do in the first day, 5:30 to 12, first day after the exam, the first night actually after the exam, I used to complete my RTP, 3 to 4 RTPs. The reason logic of using the RTPs and mock papers is that I get a flow of each and every chapter also. I get a something of a flow that each and every chapter, मेरा सारा chapter हो रहा है at least. जब एक एक चैप्टर करने से टाइम लगेगा, तो I get a flow of each and every chapter. Second thing is that RTP contributes around 20% marks also most of the times. So RTPs, if I complete 3 to 4 RTPs in question bank in the first day itself, up to 12 as much as possible quickly, then I will be able to complete 20 to 25% syllabus, maybe 20, maybe I can get 15 to 20 marks there. So this is a very important thing. Second thing which is very important is that you get only 18 hours and 6 hours you have utilized there, and next day there is 12 hours. So you have to make sure that अगर आपने RTP कर लिया पहला दिन, तो आपने 10-15 मार्क्स तो कमा लिया. There is a high probability of 10-15 मार्क्स तो पॉकेट में गाल लिया. अब आपको मेन 85 मार्क्स के लिए मेहनत करना है. Then you have to improve for 80 marks there. Then next day you have to calculate accordingly कि आपको कैसे आप जाना है. For taxation, I used to keep some short notes, okay, for ATC, deductions, chapter 6A or TDS, everything I had a short notes. So if you can prepare some short notes and keep it, that can help. In a diary you can make a short note of a short summary of that chapter, so it can help to revise that chapter very quickly. That I did in taxation, direct indirect taxation. Also you have to complete a lot of questions in those times. So lot of times this is the big mistake that people do in direct taxation. Indirect taxation, they start going through the provisions of the section. You should not go through the provision. You have to solve the questions directly now, because the more questions you do during the exam, that will help. Even in the sums also you should do more questions. So आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है, थ्योरी में माथापच्ची नहीं करना है, आप प्रोविजंस वगैरह में माथापच्ची नहीं करना है. प्रोविजंस आएगा तो उसको डिक्शनरी का तरह लेने का कोशिश करना है. यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो तब भी, और ऐसे भी आपको प्रोविजंस के साथ नहीं जाना है. प्रोविजंस आप भोजन प्रोविजंस पढ़ लेता है, प्रोविजंस पढ़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एज मच एज पॉसिबल. और मेरा मानना है कि आपको एग्जाम के टाइम में कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितना हो सके आपको जान लगा देना है. पर इन एग्जाम यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग दैट यू हैव डन. जो भी आपने पढ़ा है, आपको एग्जाम का जो 1.5 दिन का टाइम है, आपको पूरा कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज और बता दूं, जो आपका लास्ट का 2 घंटा रहेगा, व्हेन यू हैव लास्ट 2 hours, व्हेन यू हैव 2 hours लेफ्ट, सपोज योर एग्जाम इज ऑन 2 o'clock, so 11 to 12 या 11 to 1 आप वो चीज पढ़ो जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो और जो कि इंपॉर्टेंट हो. सपोज आपने कोई चैप्टर छोड़ा होगा फेमा का या सेबी का या इन लॉ में, या कोई भी चैप्टर आप छोड़ा हो. सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया हो, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें एक ना टेक करो रिस्क, और आपको लगता है कि ये चीज आ सकता है, आप उसको एक बार टेकअप कर लो. लास्ट 2 hours में नथिंग टू लूज सिचुएशन है. अगर आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिया और उसमें से फंस गया,
तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू विल बी एबल टू राइट इन एग्जाम्स, बिकॉज आपको नॉर्मली मेमोरी को याद रहता है। आप लास्ट 2 घंटा में जो भी पढ़ते, आप एग्जाम का 1-2 दिन भी पहले पढ़ते तो वो भी याद रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को। मैंने देखा है, मुझे तो याद रह जाता था। आपका लास्ट 2 आवर्स में आप जो भी पढ़ोगे आपको एकदम याद रहेगा वो चीज अच्छा से। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक कि आप लास्ट का 2 आवर्स में ना नया चीज को पकड़िए और नया चीज को पढ़ने का कोशिश कीजिए जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो बाई चांस। अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया सिलेबस, आप कोशिश करिए कि 11 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाए और लास्ट 2 आवर्स में कुछ नया चीज पढ़ने का कोशिश करिए जो आपने शायद छोड़ दिया हो या आपको टाइम नहीं मिला हो, आपने कभी इसको देखा नहीं हो, सपोज चैप्टर छोड़ दिया हो, सपोज लॉ का कोई, तो एक बार 2-3 क्वेश्चन देख लो। अगर कुछ घुसा सको सिस्टम में अपना ब्रेन में तो बहुत अच्छा है। वो अगर आप एग्जाम में आ गया तो वो तो बहुत बढ़िया आपका काम करके देगा। तो दिस आई हैव ट्राइड एंड आई हैव गॉट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट ऑल्सो। जैसे मैंने लॉ में ट्राई किया था तो लॉ में मेरे को 4 मार्क्स से 8 मार्क्स का बेनिफिट हो गया था। कुछ पेनल्टी वगैरह का सेक्शन वगैरह मैंने छोड़ रहा था तो वो मैंने करा और उसमें से फंस गया। अगर वो नहीं करता तो शायद मेरा 40 आया था, वो भी नहीं आता तो शायद मेरा शायद ग्रुप निकलता नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी मिनट इज सो इम्पोर्टेंट। आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहो। ये मैंने कभी भी लास्ट मोमेंट तक पढ़ा नहीं कोई भी एग्जाम में, चाहे मैं कॉलेज में था या 12 में था, मैं लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ता था, चिल करता था। बट सीए फाइनल में, इवन आईपीसीसी में चिल किया लास्ट 2 आवर्स में, बट इन सीए फाइनल मैंने हर एक मिनट को कीमती समझा है। चाहे ऑटो में आप रोड में चल रहा है, कहीं पर चल रहा है, पढ़ते रहो। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर मैंने आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रखने का कोशिश की है। एक चीज और है, आप समय में पहुंचो अपना एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक गलती किया था डायरेक्ट टैक्सेशन के एग्जाम में, मैं पढ़ने में इतना खो गया कि मेरा कुछ बस या कुछ मिस हो गया, मैंने बहुत लेट कर दिया था और मेरे को बस वगैरह मिल रहा नहीं था। तो उससे में क्या हुआ कि मेरा 2 बजे 2:30 बजे एग्जाम होता है, लाइक 2.5 o'clock एग्जाम इज देयर। तो आई रीच द एग्जाम हॉल इन 2.5, I reached the 15 minutes late to the exam hall, but with the God grace actually I practice a lot of, मैंने इतना प्रैक्टिस किया था पहले तो, क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस करके रखा था तो मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट का था, ऐसे पेपर लेंदी आता है तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट होता है उससे स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने सीधा ही स्टार्ट किया सेकंड ग्रुप से और मैंने लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक क्वेश्चन आया जिसमें मेरे को दोनों ही नहीं आ रहा था तो मेरे को इजी हो गया, मेरे को नहीं करना है। तो आपने पहला पार्ट देख लीजिएगा कैसे आपको 15 मिनट यूटिलाइज करना है। 15 मिनट चला गया था रात से, तो ऐसे करके मैंने भगवान का दिया था, मैंने पूरा पेपर को टाइम में कंप्लीट कर लिया अपना। तो दैट वाज इवन डायरेक्ट टेक का पेपर भी मेरा टाइम में कंप्लीट हो गया, जबकि मैंने 15 मिनट लेट आया था, शायद 15-20 मिनट लेट हो गया था आने में। तो मैंने पेपर को पढ़ा नहीं, मैंने एज इट इज मैंने गो थ्रू किया पेपर को। विद गॉड ग्रेस पेपर कंप्लीट हो गया टाइम में, though I was under a lot of tension, but because I practiced well before the exam, this really helped me a lot. तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपका कोई एग्जाम में, मतलब मैंने कई स्टूडेंट वगैरह को पढ़ाया था तो लोग का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि गॉड ऑल्सो टेस्ट यू समटाइम्स। ओके, कुछ चीज भगवान भी आपको टेस्ट करता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे। तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो आप ना उस टाइम में ना डरिएगा मत। आपको जो करना है आप बेस्ट करने का कोशिश करिएगा। तो आप बेस्ट करके उस, मैं तो मुझे लगा था मैं तो एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचूंगा, पर भगवान का दया था मैं एग्जाम हॉल में पहुंच गया। एक स्कूल बस को मैंने शायद 400-500 रुपया दिया था और उसको बोला भाई मेरे को कैसे भी आपको एग्जाम हॉल में पहुंचा दो, तो उसने पहुंचा दिया था और मैंने एग्जाम भी दे दिया और मैंने उसमें पास भी हो गया था वो एग्जाम में। मेरे को अराउंड 45 मिला था उस समय, पर एग्रीगेट इसका के कारण फेल हो गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने सारी पॉइंट्स को बहुत अच्छी से रखने की कोशिश की है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको लास्ट मोमेंट तक सारे कुछ करना है। इसके अलावा मैं लास्ट मोमेंट यही बोलूंगा, आप है ना जितना आपको ना एक चीज जो भोजन उल्टा बोलने का कोशिश करते मुझे लगा, आप कम से कम डेली का 12 घंटा तो पढ़ना चाहिए। स्पेशली अब लास्ट का 30 डेज में या 60 डेज होता है, आपको डेली का 12 से 15 घंटा पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। पहले नहीं पढ़ने से भी चलेगा, जिसका 2-3 कारण है। आपको जब आप पढ़ने लगते हो, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो मेरा पहला 1 घंटा में कॉन्सेंट्रेशन आता नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, आपके साथ होता है पता नहीं, अगर होता है तो लिखिएगा। पहला 1 घंटा में कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है, तो टाइम लगता है कॉन्सेंट्रेशन आने में, रिदम बनने में। जैसे आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो बैट्समैन को सेट होने में टाइम लगता है, तो ये जैसे स्टूडेंट को सेट होने में टाइम लगता है। तो अब जितना ज्यादा समय अगर आप बिताओगे ना तो उतना ज्यादा फॉर्म में आओगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जब मैं एकदम फॉर्म में आ जाता हूँ ना, मेरे को लगता है कि अब मेरा एकदम रिदम बैंड, मेरे पास अगर अच्छा रिदम आ गया है
तो मैं रात को सोऊंगा भी नहीं, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा वो चैप्टर को, या मैं कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी वो चीज फॉलो करता हूँ। जब मैं रिदम में होता हूँ ना, जब मेरा अच्छा रिदम है, व्हेन यू आर इन अ वेरी गुड रिदम ना, व्हेन यू आर ऑन सॉन्ग, यू आर अब अच्छा रिदम में है, तो आप ना उस टाइम ब्रेक मत लीजिए, यू डोंट टेक अ रेस्ट। उस टाइम आप सोइए मत, ये मत करिए, आप उसको फ्लो में जाके आप पूरा कंप्लीट करिए वो चीज को। आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 बजे रात का बना रहा हूँ, मैं अभी रिदम में हूँ तो मैं बना रहा हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कुछ भी करो, अगर आप फ्लो में, व्हेन यू आर इन रिदम, जब आप रिदम में हो तो एकदम आप उसका फ्लो, उसका बेनिफिट उठाइए, तो आप पूरा वो कंप्लीट करिए वो काम को। ठीक है, वो काम को आधा अधूरा मत छोड़िए कि मेरे को सोना है और मेरा सोने का टाइम हो गया, ये हो गया। भोजन बोलते हैं मेरे लिए क्लिक करता है, भले ही ये आपका क्लिक नहीं करे, पर आपका अगर कोई रिदम में चल रहा है ना, इट्स, स्पेशली पढ़ाई को लेके मैं बोलूंगा, अगर आपका अच्छा रिदम चल रहा है तो आप पूरा कंप्लीट करिए वो चीज को। वो कोई चैप्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़िए मत बीच रास्ता में। जस्ट बिकॉज रात का 10 बज गया या 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, टाइम मैटर नहीं करता है। मेन चीज मैटर करता है वो है आप कितना प्रोडक्टिविटी के साथ आपने उस दिन उसको समय को बिताया है, वो मैटर करता है। तो वो तो टाइम जितना बिताओगे, 12 घंटा अगर आप बिता लोगे, तो इसमें क्या होता है, फिर आपको आप ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर कर पाओगे। तो एक चीज मैं भी हमेशा नोट करता था, अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं तो मैं अगर सीए स्टूडेंट हूँ तो मेरे को 5 घंटा तो चिपक के बैठना है चेयर में या टेबल में, तो मेरे को हिलना नहीं है, मेरे को दरवाजा बंद करना है और मेरे को खाली बैठ के पढ़ना है। मोबाइल को हम दूर रखना है, अलमारी में रख लो, कहीं पर रख लो, मेरे को किसी से बात नहीं करना है, किसी का फोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को बस पढ़ना है। अगर मेरा माइंड भी इधर उधर हो रहा है, मतलब मेरे को कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, भगवान का नाम लेगा, सरस्वती माता का, भगवान प्लीज मेरे को प्लीज कॉन्सेंट्रेट कराओ, मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीए फाइनल कैसे भी करना है, प्लीज गिव मी द कॉन्सेंट्रेशन। आदमी क्या करता है, यूट्यूब का वीडियो देखने लग जाता है, तो वो नहीं करना है, वो वाला काम नहीं करना है। मेरा भी वीडियो मत देखिए आप, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेन चीज यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी के लिए आए हो, मोटिवेशन के लिए नहीं आए हो। मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन से सीए बनना बहुत मुश्किल है। सीए जैसा कोर्स है, अगर आप में इंटरनली आपके अगर अंदर में इंटरनल मोटिवेशन नहीं है ना, सीए का एग्जाम बहुत मुश्किल है पास होना। तो यू हैव टू बी इंटरनली मोटिवेटेड। मेरे में इंटरनल मोटिवेशन था कि मैं नीड था, मेरे को पास होना था, मेरे को कमाना था, देयर वाज फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो वो नीड था, हंगर था कि मेरे को होना है, तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तब तो बेकार है। तो वो आप रखिए, आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। आप है ना, वो जो भी यूट्यूबर है, कोई भी हो, जो भी आपका मोटिवेशन दे रहा है, उसका आप कमाई करवा रहा है, या उसका आप टाइम, उसका मजा हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है, याद रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो ना, मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है, आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। ये आप अगर याद रख लोगे, मोटिवेशन के पीछे अगर आप मोटिवेशन नहीं है तब तो बेकार है ना। तो यू हैव टू बी इंटरनली मोटिवेटेड। और अगर अगर कभी कभी मूड ऑफ भी होता है ना, कभी कभी मन नहीं करा, भगवान का नाम लीजिए। गॉड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मेरे को कभी कभी मन नहीं लगता, भगवान का नाम लेता है, मेडिटेशन कर लीजिए, गॉड का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेके सब काम हो जाता है। सरस्वती माता, जब भी पढ़ाई करेंगे सरस्वती माता का नाम लीजिए, बुक रखते सरस्वती माता का नाम लीजिए, दिस विल हेल्प यू टू गेट सरस्वती इन योर ब्रेन। तो वही है, दिस इज ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, ये सीरीज अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके डाउट्स वगैरह हो सकते हैं, तो जो भी आपके डाउट और कमेंट में लिखिएगा, हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे। आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके अगर कुछ लगा हो तो आप और भी हम लोग को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में दिखिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा। कुछ भी इंप्रूवमेंट लगे आपको तो डेफिनेटली आप बताइएगा। ओके, हम लोग इसके अलावा स्टॉक मार्केट, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप के बारे में भी बहुत कुछ कंटेंट ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में है करियर इंटरव्यूज, वो सब भी आप देख सकते हैं जैसे आपको टाइम मिले। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप अच्छा करें और आप टेंशन मत लीजिए। आपका 6 अटेम्प्ट है, 7 अटेम्प्ट, आप मेरे वीडियोज अगर आप देखे होगे, मेरा कितना स्टूडेंट लोग पास हो गया है, मेरा बात मान के। आप अगर मेरा बात मानोगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ करोगे, आपका देयर हाई प्रोबेबिलिटी आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैंने बता दिया फेल कैसे नहीं हो सकता है, मैंने सारा बता दिया आप क्या क्या जगह से आप फेल हो सकते हो। तो फेल नहीं होने का मैं रास्ता बता दिया। अगर आपको बता दिया ये सब चीजें तो फेल नहीं हो गए, तो पास तो नहीं है ना। तो दैट इज द थिंग। और इतना मुश्किल नहीं है, आपका 6 अटेम्प्ट हो जाए, 7 अटेम्प्ट हो जाए, मेन चीज है आपको अपना गलती पता होना चाहिए, अपना गलती को सुधारिए, पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके देन, लॉन्ग वीडियो था बट आई थिंक इट वाज काइंड यूजफुल फॉर यू। आई होप इट इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर माय एंड। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे इन टच विथ अस। ओके, ओके देन, बाय बाय।